And then he does. There it is. Hassan Ali wins it for Pakistan. Just their second series win against South Africa in T20 internationals. ٹیسٹ کے بعد T20 سیریز میں شاہینوں کے نام. دلچسپ مقابلے کے بعد پاکستان نے تیسرے اور فیصلہ کن T20 میں جنوبی افریقہ کو شکست دے دی. سیریز 2-1 سے پاکستان کے نام. پاکستان نے 165 رنز کا ہدف 6 وکٹوں کے نقصان پر مکمل کیا. بابر اعظم 44 اور محمد رضوان نے 42 رن سکور کیے. زاہد محمود نے ڈیبیو میچ میں 3 وکٹیں لی. حسن علی اور محمد نواز کے 2-2 شکار. جنوبی افریقہ ایشیا میں پہلی بار T20 سیریز ہارا. محمد نواز کو آل راؤنڈر پرفارمنس پر مین آف دا میچ قرار دیا گیا. جنوبی افریقہ کو تیسرے T20 میں شکست دے کر پاکستان نے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا. T20 انٹرنیشنل میں کامیابیوں کی سینچری کرنے والی دنیا کی پہلی ٹیم بن گئی. قومی ٹیم اب تک 164 T20 انٹرنیشنل میچ کھیل چکی ہے. سینیٹر بننے کے امیدواروں کی سینچری ہو گئی. سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری. اسلام آباد سے PTI نے وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو میدان میں اتارا. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی PDM کے مشترکہ امیدوار. پنجاب سے PTI کے سیف اللہ نیازی، زرقا تیمور اور قاف لیگ کے کامل علی آغا میدان میں. نون لیگ کے پرویز رشید، مشاہد اللہ، سیف الملوک کھوکھر اور PP کے عظیم الحق منہاس کے کاغذات جمع. سندھ سے شہری رحمان، فاروق نائک، سلیم مانڈوی والا، پلوز شاہ خان اور تاج حیدر. MKM کے فیصل سبزواری، خواجہ سہیل منصور، رؤوف صدیقی سمیت 10 امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے. پشاور میں شبلی فراز، ثانیہ نشتر اور پیپلز پارٹی کے فرت اللہ بابر کے کاغذات جمع. بلوچستان سے ظہور آغا نے کاغذات نامزدگی وصول کر لیے. بھارت کا پاکستان کو تنہا کرنے کا خواب، پاکستان کا کرارا جواب. 45 ملکوں کی امن مشقوں میں شرکت. 2021 کی امن مشقیں، بھارتی سازشوں کا بھی منہ توڑ جواب. پاکستان کو تنہا کرنے کے بھارتی عزائم سمندر برد ہو گئے. مشقوں میں امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس، جرمنی، جاپان، کینیڈا، اٹلی، ڈنمارک، ترکی، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، ایران، کویت سمیت 40 سے زائد ممالک کی شرکت. بحرین، اردن، عمان، قازقستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، سری لنکا، عراق اور کینیا بھی مشقوں میں شامل. بھارت نے پلوامہ حملے کا ڈرامہ 14 فروری 2019 کو رچایا. 14 فروری کے ہی روز پاکستان میں 40 سے زائد ممالک کی نمائندگی نے پلوامہ حملے کی سازش کو بھی سمندر برد کر دیا. سمندر کی موجوں سے امن کا عالمی پیغام. PNS قاسم منوڑا پر دہشت گردی سے نمٹنے کی عملی مشق. حربی صلاحیتوں کا مظاہرہ. پاک بحریہ کے جانبازوں کے ساتھ 40 سے زائد ممالک کے بحری جہازوں، ایئر کرافٹ اور اسپیشل آپریشن فورسز نے مشقوں میں حصہ لیا. لہروں کا سینہ چیرتی فوجی کشتیوں اور فضاؤں میں ہیلی کاپٹروں کی گھن گرج نے حاضرین کا لہو گرمایا. پیراشوٹرز نے ہیلی کاپٹر سے فری فال کا مظاہرہ کیا. DGISPR کا کہنا ہے امن 2021 کا کامیاب انعقاد علاقائی امن و استحکام کے پاکستان کے عزم کی تائید ہے. مشقوں کا مقصد غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے صلاحیتوں میں اضافہ اور سمندری جارحیت سے نمٹنا ہے. جنرل ندیم رضا نے مشقوں کی پیشہ ورانہ مہارتوں اور پاک بحریہ کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا، مشقیں دہشت گردی، میری ٹائم جرائم کے خلاف اتحاد کے طور پر دیکھی جائیں گی. پاکستان خطے میں امن اور بقائے باہمی کے اصولوں پر کاربند. امن مشقوں میں بین الاقوامی بینڈ کی کلچرل پرفارمنس. حوالدار قادر بخش کی سربراہی میں پاک آرمی بینڈ کی شاندار پرفارمنس. قومی اور جنگی دھنوں نے جوش بڑھا دیا. پاک فضائیہ کے بینڈ نے ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل الغازی کی دھن بھی بجائی. پاکستان نیوی اور پاکستان کوسٹ گارڈز کے بینڈز کی بھی زبردست پرفارمنس. سری لنکن نیوی اور پاکستان رینجرز کے بینڈز نے بھی دھنیں بجائیں.
पाकिस्तान मरीन्स के राइफल स्क्वाड की जानिब से स्पेशल ड्रिल का मुजाहिरा। राइफल ड्रिल का मुजाहिरा देखने के लिए 45 ममालिक के नुमाइंदों की भरपूर दिलचस्पी। पाकिस्तान मरीन्स के दस्तों ने मेहमान खुसूसी जनरल नदीम रजा को सलामी पेश की। मोदी सरकार की जानिब से रचाए गए पुलवामा ड्रामे को 2 साल मुकम्मल। भारतीय हुकूमत ने किस तरह घिनौने मंसूबे बनाए, कैसे अपनी ही फौज को रिश्वत दी, फिर अपने ही जवान मरवाए, मीडिया को कैसे इस्तेमाल किया, सब बेनकाब हो चुका। तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद DGISPR ने वाज़ेह किया, जीत हमेशा सच की होती है। भारत से जवाब तलबी का वक्त आ गया है। सहराए थर में जिदारुल हदीद फौजी मशक़ें जारी। फौजी मशक़ों में दस्ते सहरा में दरपेश चैलेंजेस और खतरात से निमटने की ड्रिल्स में मसरूफ। कराची कोर के तहत जिदारुल हदीद 28 जनवरी से थर के सहरा में शुरू हुई। ISPR का कहना है मशक़ों में जंगी सूरत हाल में जवाबी हिकमत अमली के उमूर अंजाम दिए जा रहे हैं। वोट ओपन हो या सीक्रेट, बिकने वाला बिकेगा। मौसम बदल चुका, मौलाना को अब हलवा नहीं मिलेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं वो मुस्लिम लीगी नहीं जो पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाए। बहादुर अफवाज पर इल्जाम तराशी करने वालों की जुबान बुद्धि से खींच लेंगे। कानून के दायरे में रहते हुए लॉन्ग मार्च के लिए आए तो कोई रुकावट नहीं होगी, खिलाफ वर्जी की तो कदम कदम पर रुकावट होगी। जो पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे आज वही इंतशार फैला रहे हैं। वोट बेचने वालों पर लानत भेजता हूँ, उन पर भी लानत भेजता हूँ जो कौम के वोट पर मुंतखब होकर खुद को बेचते हैं। स्पीकर असद कैसर कहते हैं मरियम नवाज ने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया जिस पर अफसोस हुआ। मरियम नवाज एक सीट की खातिर मुल्क में अफरा तफरी फैला रही हैं। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं PDM को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। इनके कोच रिटायर होकर लंदन बैठ गए, सर्टिफाइड चोरनी को पाकिस्तान छोड़ गए। अंधेर नगरी के खात्मे का वक्त आ गया। सेनेट इलेक्शन में बलूचिस्तान के बाद सिंध से भी आवाज उठने लगी। टेक्नोक्रेट की सीट पर नामजद सैफुल्ला अब्रो को टिकट देकर गलत फैसला किया गया। टिकटों की तकसीम पर PTI सिंध रीजन के नुमाइंदों का गवर्नर सिंध को खत लिखा। टेक्नोक्रेट सीट के लिए नामजद सैफुल्ला पर करप्शन के इल्जामात हैं, उनके खिलाफ नैब में केसेस हैं। सैफुल्ला पीपल्स पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। मुतनाज़िर शख्सियात को टिकट जारी किए तो बल्दियाती और आम इंतखाबात से दस्तबरदार हो जाएंगे। सैफुल्ला पार्टी के कई ताकतवर लोगों का ATM है। बिल्कुल बेहोशी हालत में थी। आधा घंटे के बाद इसको होश आया, इसने बताया, फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं हो सका। जालिमों ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है, हम बर्बाद हो गए। इन जालिमों को कैसे सजा मिलनी चाहिए। कराची गुलशन हदीद में फर्स्ट ईयर की तालिबा के साथ इज्तमाई ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम पड़ोसी निकला। मुल्जिम की बहन और मुतासरा लड़की एक ही जगह ट्यूशन पढ़ती थीं। केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुंतकिल। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 4 हो गई। चौथे रूपोश मुल्जिम को कराची के बाहर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 2 मुल्जिमान का रिमांड ले लिया। DNA के जरिए मुल्जिमान तक पहुंचा जाएगा। बेटा बच जाए बाप की दुआ। कराची के इलाके के माड़ी में दुल्हा की कार पर फायरिंग, दुल्हा जख्मी, साथ बैठा 10 साला शहबाला जाँ बहक। पुलिस का कहना है फायरिंग दुल्हन के कजिन ने की। लड़की के वालिद ने उसे बचपन में अपनी बेटी से शादी का कहा था। मुल्जिम की तलाश जारी। जहाँ एक पार्टी यहाँ पर आ जाए कि उनको अपने अरकान पर एतमाद नहीं है कि तो वो अब किसी और को नहीं खरीद सकते। तो अगर इस्लामाबाद से हमारा रुख रोका जाता है तो फिर दायरा की पिंडी की तरफ जाना होगा। हुकूमत को अपने अरकान पर एतमाद नहीं, इसलिए इलेक्शन ओपन बैलेट से कराना चाहते हैं। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सेनेट इलेक्शन में हुकूमती खजाना भी बेबस हो गया। कौमी दौलत लुटाना भी इनके काम नहीं आएगा। मौलाना फजलुर रहमान के घर चकदरा में JUI पाकिस्तान का पावर शो। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने
PDM की जंग जाली करार दे दी, कहा लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के लिए तारीख पर तारीख दे रहे हैं। पार्टी दस्तूर की खिलाफ वर्जी पर मौलाना फजलुर रहमान को नोटिस जारी करेंगे। जमयत उलमाए पाकिस्तान का मर्दान, लकी मरवत, टांग, डेरा इस्माइल खान में जलसों का ऐलान। उसकी बात है कराची की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास फायर इंजन नहीं है, फायर इंजन मिल जाए तो डीजल और पेट्रोल का पैसा नहीं है। आइन में जो जिम्मेदारी सूबे की बनती है वहाँ पर भी वफाक आगे बढ़कर कोशिश कर रहा है कि इस कराची के जायज गिले को, जायज शिकवे को पुर किया जाए। चीन से मंगवाए गए 52 फायर टेंडर्स में से 26 KMC के हवाले। सिंध रेंजर्स, KPT और पोर्ट कासिम को 2-2 फायर टेंडर्स दिए गए। नॉर्थ कराची ट्रेड इंडस्ट्री और फेडरल बी एरिया इंडस्ट्री को भी 2-2 फायर टेंडर्स दिए गए। तकरीब गवर्नर हाउस कराची में हुई। वफाकी वजीर असद उमर का कहना था कि KMC के पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं, सूबे और वफाक को जिम्मेदारी पूरी करना होगी। वज़ीर आज़म का 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे से मुतालिक अहम फैसला, अगस्त तक 1 अरब पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर कर दिया। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म हफ्तावार एक सूबे में शजरकारी की तकरीब में शरीक होंगे। चोलिस्तान जीप रैली के फातेह साहबजादा सुल्तान 165 किलोमीटर के पुरखतर ट्रैक को 3 घंटे 11 मिनट में अबूर करके टाइटल अपने नाम कर लिया। दिफाई चैंपियन मीर नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। विमेंस कैटेगरी में तुष्णा पटेल ने भी मैदान मार लिया। डर्ट बाइक रेस में मोइन खान बाजी ले गए। वज़ीर आला पंजाब ने भी चोलिस्तान जीप रैली में रेतीले ट्रैक पर गाड़ी चलाई, कहा दिल करता है मुकाबले में शिरकत करूं। आइंदा रैली में बैनुल अक़वामी रेसर्स को भी मदऊ किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के आगाज में सिर्फ 5 दिन बाकी। दिफाई चैंपियन कराची किंग्स के साथ बड़े नाम जुड़ने की रिवायत बरकरार। एनर्जी ड्रिंक एपिक कराची किंग्स का ऑफिशियल एनर्जाइजिंग पार्टनर बन गया। विटाबिक्स भी कराची किंग्स का ऑफिशियल न्यूट्रिशन पार्टनर होगा। ये मैं हूं, ये मेरी टीम है और हम सीरीज जीत के हम पार्टी कर रहे हैं। ये हमारी टीम है, हम सीरीज जीत गए हैं और ये पार्टी हो रही है। हसन अली ने टीम के साथ वायरल वीडियो का नया वर्जन बनाया, T20 सीरीज जीतने का जश्न मनाया। कराची साइट एरिया के नादरा मेगा सेंटर का मुलाजिम खवातीन को हिरासा करने के इल्जाम में गिरफ्तार। मुलजिम महराज डाटा एंट्री से खवातीन के नंबर निकलवाकर गैर अखलाकी वीडियोस भेजता था। शादी के लड्डू ना खाने का गुस्सा या सलामी ना मिलने का गम, टंडू मोहम्मद खान में वकील ने गांव वालों पर पर्चा कटवा दिया। अली शेर ने 29 अफराद पर झगड़े का मुकदमा दर्ज करवाया। अली शेर ने दूसरी शादी पर बुलाया, ना जाने पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। 2, 1, स्टार्ट। मार्शल आर्ट्स मास्टर राशिद नसीम के एक दिन में 2 रिकॉर्ड। चीनी एथलीट का बोतल के दरमियान 14 ताश के पत्ते निकालने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1 मिनट में 19 पत्ते निकाले। रिकॉर्ड को पैमा मोहम्मद अली सतपारा के नाम। पंचिंग कार्ड पर 1 मिनट में 378 मुक्के बरसाकर स्लोवेकियन एथलीट का गुज़श्ता साल का रिकॉर्ड भी पाश कर दिया। और सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज। माह रजब का आगाज होते ही अकीदतमंद उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए अजमेर शरीफ पहुंचने लगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।